I will do optional exercise today. Very important exercise, very important. Optional one is very important exercise. I am making a figure. I will ask the answer from you people only. This is a triangle PQR. PS is the angle bisector. Prove that QS upon SR must be equal to PQ upon PR. What is the question? Listen it carefully. This triangle is PQR. PS is the angle bisector of angle P. You have to prove this side upon this side is equal to this side upon this side. How? How you will prove? How you will prove? Ifsita, Sir, please repeat. nothing. Question is very simple. Question is PQR. कुछ भी नहीं दिया है उसने. PS angle bisector दिया है. You have to prove PQ upon PR is equal to QS upon SR. That's all. Ashish Mishra. यस सर. Yes, can you? सर इसमें कंस्ट्रक्शन से होगा क्या? हाँ. I am doing the सर construction here. सब पीएस के पैरेलल एक रे बना दीजिए. From R, draw a line parallel to PS, extend PQ. This is P. This line is parallel to this. 9th standard में क्वेश्चन किया था ना हमने एक बार. The same construction we have done. Same construction we have done. Now anyone can tell me now? Anyone can tell me now? Sadhna? Now you see. No, sir. Very simple question it is now. ये कंस्ट्रक्शन के बाद तो बहुत ही सिंपल हो जाता है. ऑप्शनल एक्सरसाइज है. बेसिक प्रोपोजिट थ्योरम आप यूज करिए. इन ट्राइंगल. Sir, SPR is equal to PRT. In triangle QTR, PS is parallel to TR. By construction, this implies PQ upon PT must be equal to QS upon SR by basic proposition theorem. बस आपको यहाँ पे PQ upon PT की जगह PR लेना है. Means you have to prove these two sides equal. That's all. और ये दोनों मेरे ख्याल से equal भी है. If you will take angle 1 is equal to 2, it is already given. और 2 is equal to 3 है. Alternate angle है. 1 is equal to 4 है. Corresponding angle है. तो 3 must be equal to 4 और PT is equal to क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा. Am I right? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. Here. Angle 1 is equal to 2, it is given. भाई PS जब बाइसेक्टर है, this is angle 1 must be equal to angle 2. Angle 2 is equal to angle 3. These are alternate angle. These two angle equal और ये 1 and 4 ये दोनों लाइन पैरेलल है. This is a transversal. So 1 must be equal to angle 4. That is corresponding angle. This implies angle 3 must be equal to angle 4.
इन दोनों से क्या मिला, 1 इक्वल टू 2 है, तो व्हाट यू विल गेट 3 इक्वल टू 4, और 3 इक्वल टू 4 से इक्वल टू पीटी इक्वल टू पी आर, पीटी इक्वल टू पी आर हो जाएगा. तो इन दिस प्लेस this you can take 1 or this you can take 2, from 1 and 2 what is pq upon pr is equal to qs upon sr. This line, this result can be proved like this. Okay beta, all of you understood this one? Yes, sir. Very simple it is. Only construction का आपको ध्यान रखना है इसमें, ओनली कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है. और इसका यू नो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. कन्वर्स व्हाट से, इफ इन अ ट्रायंगल PS is a line intersect QR at S and PQ upon PR is equal to QS upon SR. It is given PQ upon PR is equal to QS upon SR. It is given, ये दिया हुआ है. आपको प्रूव करना है that PS is the angle bisector. Can you prove it? Yes, sir. How? Sir, same construction is required. सेम कंस्ट्रक्शन करना है आपको, कंस्ट्रक्शन में कोई वो नहीं रखना है. अच्छा कंस्ट्रक्शन यही है, या आपको 1 इक्वल टू बीपीटी की वजह से पीएस पैरेलल टू टीआर हो जाएगी. है, बीपीटी की वजह से पीएस पैरेलल टू टीआर हो जाएगी. कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से. आप कंस्ट्रक्शन क्या करोगे इसमें? सर यही वाली. तो PS पैरेलल टू TR तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, यस सर. फिर उसमें वो क्या करने की जरूरत है? आप ये गिवन में रख सकते हो, ये आपने पैरेलल किया, ये चीज गिवन है ना. और दूसरी चीज आप इसमें लिख सकते हो PQ अपन PT मस्ट बी इक्वल टू QS अपॉन SR. दिस इज बाई BPT. आपने जब इसको पैरेलल किया, दिस इज बाई व्हाट, BPT. और ये क्या चीज है बेटे, गिवन है. दिस थिंग इज गिवन, दोनों चीज QS अपॉन SR के बराबर है. यू कैन राइट PQ दिस अपॉन इंप्लाइज पीआर इक्वल टू पीटी. Q upon PT, है ना. This implies what? PR is equal to PT. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटे, इक्वल हो जाएंगे ना. PR is equal to PT हो जाएगा ना. And if PR is equal to PT, so you can say 3 must be equal to 4. PR is equal to PT, you can say angle 3 must be equal to 4, or angle 3 must be equal to angle 2 alternate angle, or angle 1 must be equal to angle 4, that is corresponding angle. What you will get, 3 is equal to 4 है, तो then this become angle 1 is equal to what? 1 और 2 भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा. साधना, यस सर. 1 इक्वल टू 2, so PS is the bisector of angle P. तो इसका कन्वर्स भी है. ये क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का. सी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका कन्वर्स, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है. वहां पे AD दिया है, ABC ट्राइंगल दिया है, सेम थिंग इट इज देयर. So please note down, this is question number 1 and that question number 9. Please note down, this is 2 questions, question number 1 and question number 9. Noted sir. Noted, sir. This question is also very important. Please note down. Figure it is given here.
This is also perpendicular. This is also perpendicular. This is also perpendicular. This is D, M, and M. Please see the figure. This ABC is right angle at B. AC is the hypotenuse from B. BD is the perpendicular to AC. And from point D, DM and DN are perpendicular to BC and AB. Right, sir? First, you have to prove DM square is equal to DN into MC. And second, you have to prove DN square is equal to DN into AN. How? सर Please सर इसमें try- डीएम परपेंडिकुलर Please try to find the answer. Anyone, Vinisha? हाँ ये भी Yes, डीएम sir. परपेंडिकुलर है, डीएन परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर बीडी. फर्स्ट यू हैव टू प्रूव डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इनटू एमसी. बट एक चीज तो आप बता सकते हो इसमें सबसे पहली चीज, दिस एम बी एंड डी, बी एंड डी एम इज ए रेक्टेंगल. नहीं रेक्टेंगल ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये क्या होगी बेटे, रेक्टेंगल होगी, यस सर है ना. सो यू कैन से डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल बी एंड डी एम इज ए rectangle because you can write the region all angles are of 90. 90 degree. Right sir? ठीक है ना? यस सर ये तो बात Yes, आपको sir. सही लगी. और इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे फिर, इक्वल होंगे. आई कैन से दिस एम्प्लाइज BM is equal to ND and BN is equal to DN. Opposite side of rectangle are Equal. ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल. राइट सर? Yes, sir. आगे प्रूव करिए. आई हैव गिवन ए हिंट टू यू पीपल. सर मैं बताऊं. Any other one? Ashish Mishra, Ipsita, Melvin, Pragati Tripathi, Himanshu Saini, Ritika Meghwal, यस सर can you? Vinisha, Manvi Jain, Yes, sir. any hint, anything? ट्रायंगल सिमिलर करेंगे. सर डीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू डीएन इनटू एमसी. हाँ, ये प्रूव करना है. Ipsita, what do you want to say? ट्रायंगल सिमिलर कर देंगे. कौन कौन से? सर एक तो सर वो समझ नहीं आ रहा किसको सिमिलर करना है, पर ट्रायंगल सिमिलर करेंगे फिर उससे वो आ जाएगा.
बेटा चैप्टर इज सिमिलर ट्राइंगल, सो वी हैव टू डू ट्राइंगल सिमिलर ओनली, है ना? Sir, DCN and BDM by AA similarity criterion. कैसे कैसे? टेल मी, यस टेल मी। यस Sir, BM upon DM is equals to DM upon MC. DM upon DN is equal to BM upon DM. DM upon DN ना, Yes, sir. मतलब इनका इससे क्या होगा? Is equal to DM upon MC. क्यों? DN upon MC क्या होगा भाई? है? है बेटा? Anyone? One girl, नहीं, I think Ipsita has told कि सर अगर हम इन दो ट्राइंगल को, दिस वन और दिस वन, क्या कर दें इनको? सिमिलर। सिमिलर प्रूव कर दे हाँ तो रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, फिर वो प्रोपोर्शनल थ्योरम है ना। रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं अपन, नहीं? यस सर। वी कैन यस। अब इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करें? पहले ये यहां तक तो आ गई आप, वेरी गुड, दिस थिंग इज देयर कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे तो रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे। यस रितिका, व्हाट यू वांट टू से? रितिका मेघवाल, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, टेल मी वन थिंग, यू टेल इप्सिता, यस सर। वन थिंग यू टेल फ्रॉम अदर चाइल्ड आल्सो आई एम आस्किंग। आप ये फिगर भूल जाइए, दिस फिगर यू रिमूव, ये ऊपर की फिगर को हटा दो। यस सर। आप ये फिगर रखो अपने दिमाग में, दिस नीचे वाली ट्राइंगल BDC। हु इज सेइंग? मैं बताऊं हु इज सेइंग? अच्छा, ट्राइंगल BDC, इट इज अ राइट ट्राइंगल। Yes, sir. ये राइट ट्राइंगल है। अच्छा, इसमें से राइट में से हम जहां राइट एंगल है वहां हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यस सर। या DM इज परपेंडिकुलर टू BC ना, BC एक हाइपोटेन्यूज है ना ऑफ ट्राइंगल BCD, एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. तो मैं, ये तो वही पाइथागोरस थ्योरम हो गई ना बेटा। हाँ, मैं ये दो छोटी ट्राइंगल को इस बड़ी वाली ट्राइंगल के क्या कर सकता हूँ? इक्वल, सिमिलर। सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ ना, और फिर ये आपस में भी क्या होगी? सिमिलर। एम आई राइट? यस सर। तो यू कैन से, आप सिमिलर प्रूव कर लेना, बट आई एम पुटिंग डायरेक्टली ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू BDC। टेल मी, इस ट्राइंगल के ये C एंगल कॉमन है, लास्ट में C आएगा, D 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल इसमें कौन सा है? ये M यहां आएगा, और ये इस ट्राइंगल DMC के सिमिलर है, एम आई राइट? DMC बाय A सिमिलरिटी कंडीशन। कैसे? एंगल C इज कॉमन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एम आई राइट? यस सर। इतना कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख सकता, आपको वहां क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ये ट्राइंगल आर सिमिलर, राइट सर? यस सर। नाउ द सेकंड पोजीशन, दैट ट्राइंगल BDC सिमिलर टू, अभी छोटी वाली ट्राइंगल
बी कॉमन एंगल इन दोनों में, बी से स्टार्ट है तो बी से ही स्टार्ट करेंगे। अनदर राइट एंगल बी एम डी, एम आई राइट? यस सर। दोनों ट्राइंगल बीडीसी के सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है? बीडीसी के सिमिलर है ना। दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल बीएमसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएमडी। ये दोनों भी ट्राइंगल क्या होगी बेटे? सिमिलर। सिमिलर होगी। तो इसके साइड्स को कंपेयर करिए। डीएम अपॉन बीएम इक्वल टू एमसी अपॉन एमडी। यही रखिए, ये डीएम है ना, एमडी डीएम। तीसरा मैं लिखता ही नहीं हूं, मेरे को स्क्वायर फॉर्म चाहिए ना, डीएम स्क्वायर। यस सर। This implies this by CPST, or you can write dm square is equal to bm into mc। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ bm यू कैन राइट dn। bm किसके बराबर इक्वल है? बीएन। dn। तो dm square is equal to dn into mc, because bm is equal to dn. See first, I have proved. First relation I have proved. All of you understood? Please tell me any confusion. Yes, Vinisha, sir. Understood. Understood. इप्सिता, सर आप लोग Understood. हाँ इप्सिता बोलो बेटा। सर हाँ हुई। सर आपने ना वो जो अपॉन में लिखी है वो क्यों लिखी है? हाँ व्हाट बेटा? सर आपने ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, उसके बाद वाली स्टेप नहीं समझ आई। लाउडली स्पीक, लाउडली, आई कैन नॉट लिसन यू बेटा। सर हाँ। ट्राइंगल सिमिलर कर दिया आपने, हाँ, उसके बाद वाली स्टेप नहीं समझ आई। उसका बाद वाला मतलब ये कैसे लिखा? यस सर। ये तो करस्पॉन्डिंग साइड है ना बेटा, डीएम अपॉन बीएम इक्वल टू एमसी अपॉन एमडी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ना, अगर मैंने सिमिलर प्रूव कर दी तो। ओ यस सर। फिर वही तो लिखा है मैंने दो ही लिखा है, तीसरा भी लिख सकता था, बट मेरे को दो की जरूरत पड़ी, डीएम स्क्वायर है मेरे पास, इसलिए मैंने डीएम स्क्वायर। ओके सर। एनी अदर प्रॉब्लम? मानवी जैन, वेयर आर यू? Yes sir. Understood this one? Yes sir. Saruchi, are you in the class? Yes sir. Understood this one? Yes sir. Pragati Tripathi, Yes, sir. understood this one? Understood, sir. Okay. Understood sir. Okay, you tell me the second one, how you will prove. dn square is equal to dm into an. Yes, DN, this DN one. square वाला. This one. How you will prove this? एक सेकंड बता dm रही हूँ. सर इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. कौन बोल रहे हैं? प्रगति। हाँ, कौन कौन सी Yes, sir. ट्राइंगल को सिमिलर बेटा? सर ट्रायंगल हाँ। DNB और यस। ADN. हाँ, बट हाउ यू विल, ये मैं मिटा दूं ये? Yes, sir. दिस वन आई रब इट। You are telling, sir, you prove these two triangles similar. This one or this one. Am I right? Yes, sir. इसमें भी ये करो, दिस फिगर आप भूल जाइए। Yes, sir. This ABD is a right triangle at D.
Yes, sir. और डी से क्या हुआ, डीएन परपेंडिकुलर डाला ए बी में। Yes, sir. तो ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है, दिस स्मॉलर ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस बिगर वन, Yes, sir. होगी ना। और उससे Yes, हम sir. दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। Similar proof. Yes, जैसे sir. वो किया था हमने पहले वाला, Yes, किया sir. था ना। और फिर उसके बाद डीएन स्क्वायर आएगा, जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखोगे वहां डीएन स्क्वायर आएगा और इक्वल टू डीएन स्क्वायर आएगा इक्वल टू एन इंटू एनबी की जगह क्या लिख देता डीएन। Yes, sir. तो सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। Prove हो जाएगा. Yes, sir. I have told Ipsita, everyone now can prove the second result, second one. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prove same to same. Manali, same to same as first we have proved. Same to same as first we have proved. The second. Sadhana, second Yes, sir. also we can prove. Second also we can prove. Similarly as first we have done. Ashish, as first we have done, second also we can prove. Ashish Mishra, Okay, sir. मेरे को प्रूव कराने की जरूरत है। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. विनीशा, Yes, sir. विनीशा, कैन यू डू दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this question number 2 ends. I am coming to question number 3 now. See question number 3. In figure 6.58, ABC is a triangle, ABC is obtuse. I am making two figures. In one, I am writing ABC an obtuse angle, and one another figure, I am making ABC angle B is a acute angle. Am I right? दो फिगर बनाई है बेटा मैंने. In one figure, I have put ABC obtuse, and one figure B angle B acute. What is saying? AD is perpendicular to BC. AD perpendicular डालूंगा, इस BC को बढ़ाना पड़ेगा तभी परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पे तो डायरेक्टली AD आ जाएगा परपेंडिकुलर. दोनों में मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ. The same thing I am doing. AD is perpendicular to BC. इस फिगर में आपको प्रूव करना है, इस फिगर में आपको प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD प्लस, और वहां पे क्या करना है माइनस. सेम चीज प्रूव करनी है. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, और यहाँ पे क्या करना है माइनस 2BC इंटू BD. सेम थिंग बट फिगर इज डिफरेंट. Can you write AC square in both of them? Kushag Srivastava, Yes, sir. can you write AC square in both of the figure by Pythagoras? No, sir, because ADC is not a right triangle. यार ADC तो right angle है. What you are saying? This is a right triangle. You can write AC square कितना होगा? Yes, sir. Yes, sir. How? This is AD square plus, Plus BC square. BC square. यहाँ पे AC square क्या होगा? AD square. AD square plus BC square. By Pythagoras. By Pythagoras ना. Yes, sir. अब देखो मेरे को AD square नहीं चाहिए. AD square I don't want. Can I change AD square? ट्राइंगल ABD में AD square निकाल सकता हूँ. AC square तो आप वही रखिए. In place of AD square, AB square minus BD square. Am I right?
प्लस DC स्क्वायर। अरे ये ट्रायंगल ABD में AD स्क्वायर में निकाल सकता हूं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। विनीशा, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। और यहां पे भी मैं यही चीज कर सकता हूं, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। यू प्लीज फाइंड आउट AB स्क्वायर माइनस BD, सेम चीज, प्लस DC स्क्वायर। ये दोनों यहां तक तो स्टेप दोनों में सेम ही चलेगा। यस सर। आगे क्या करूं बेटा? ये रिजल्ट लाना है मेरे को। सर DC को स्प्लिट कर दो, इसमें DB और BC में। BC को, नहीं DC को। अच्छा DC को, मतलब प्लस में करते BD प्लस BC है। यस सर। कौन बोल रहा है? विनीशा। ओके, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने, बहुत बढ़िया। बट देखो इस फिगर में मैं जो DC को स्प्लिट करूंगा वो करूंगा BD प्लस BC, और यहाँ पे जब DC को स्प्लिट करूंगा तो लिखूंगा BC माइनस BD। राइट सर? यस सर, Yes, मैंने sir. एक ही ट्रायंगल का बताया। फिगर में अलग अलग, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर रखो, माइनस BD स्क्वायर भी रखो, और DC को स्प्लिट करो BD प्लस DC का होल स्क्वायर। इन द सेम वे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर रखो, एंड दिस विल बी DC का होल स्क्वायर, मतलब BC माइनस BD का होल स्क्वायर। और आप इसको खोलोगे तो अपना आप ही रिजल्ट आ जाएगा ना रिजल्ट? यस सर, आ गया। दोनों रिजल्ट आ जाएंगे ना? यस सर। अरे आएगा कि नहीं इप्सिता? Yes, sir. दिस इज AC स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DC। BD प्लस ये प्लस BC होगा, सॉरी, BD इंटू BC। राइट सर? सो ये BD स्क्वायर कैंसिल और ये रिजल्ट आ जाएगा पहले वाले में। और यहां आप इसको खोलोगे तो BD स्क्वायर कैंसिल होगा, BD स्क्वायर कैंसिल होगा, बट वहां क्या आएगा? 2 माइनस 2 BC इंटू BD। राइट सर? आलू Yes, भी sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड। दिस इज क्वेश्चन नंबर Sir, question number 3. 3 and 4. 3, 4. 3 and 4. So today I will do up to here only because time is going to up. I will do the next question, the next class to you. Okay, students, thank you. Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।